الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ انگریزی بائبل جو مختلف ناموں سے ہے، آتھرائز کنگ جیمز ورژن جو سب سے پہلی انگلش بائبل 1611 میں چھپی، لیکن یوں کہنا چاہیے کہ پروٹیسٹنٹس کی سب سے پہلی انگلش بائبل 1611 میں چھپی، رومن کیتھولکس کی اس سے پہلے انگلش بائبل وجود میں آئی، وہ 1584 میں۔ تو آتھرائز کنگ جیمز ورژن وہ ایک بائبل ہم نے مثال کے طور پر لی، پھر اس کے بعد میں کافی بعد نیو انٹرنیشنل ورژن، پھر وہ ایک بائبل، اور اس کے بعد امریکن اسٹینڈرڈ بائبل، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن، جہوہ وٹنس کی بائبل۔ یہ چار بائبلوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ہی ورس کو اگر مثال کے طور پر لیں تو دوسری جگہوں پر وہ ورس بدل کے رہ جاتی ہے۔ اس کے وجوہات مختلف ہوں گے، چاہے وہ یہ ہوں کہ ایک بائبل ایک خاص نسخے کو اپنا بیس بنائے اور دوسری بائبل دوسرے خاص نسخے کو اپنا بیس بنائے۔ تو الگ الگ نسخوں کو اگر بیس بنائیں گے تو ظاہر ہے الگ الگ باتیں جو اس نسخوں میں ہیں اس بائبل میں آئے گی۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقیدے میں جہاں تکرار ہو کہ بھائی اس بائبل میں تو اس تعلق سے بات کہی گئی ہے جو عقیدے سے تکرار کرتی ہے، ٹکراتی ہے، تو اس چیز کو میں کیسے برقرار رکھوں؟ تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی وہ چینجز لا سکتے ہیں۔ تو مختلف وجوہات ہوں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب سے انورٹڈ کاما میں اسے کھیل رہا ہے، جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کو اسی حساب سے چینج کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت، یہ صورت کسی کتاب کے تعلق سے اپنائی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ گاڈ ورڈ ہے، یہ کہاں تک مناسب بات ہے؟ ہم اور جاری رکھتے ہیں اسی سلسلے کو کہ کس طریقے سے ایک ورس آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں ہے اور وہی ورس دوسری بائبل میں کس طریقے سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے ایک اور حوالہ، اس سے پہلے ہم 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس نمبر 22 کو دیکھے تھے، جس میں یہ لکھا تھا "You have purified your souls in obeying the truth"۔ تم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے حق بات کو اپنانے سے، through the spirit، روح کے ذریعے سے۔ through the spirit، یہ عقیدے میں بڑا دخل ہے ان کا، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ کافی عیسائی ٹرینٹی میں عقیدہ رکھتی ہے۔ ٹرینٹی کا مطلب یہ کہ خدا ایک لیکن تین، پہلا خدا، خدا باپ دا فادر، دوسرا خدا دا سن، بیٹا خدا، تیسرا پاک روح۔ تو ہولی اسپرٹ تیسرا حصہ ہے خدا کا، یا تیسرا نام ہے خدا کا ٹرینٹی میں۔ تو یہاں پر اس ورس کے اندر ہے تھرو دا اسپرٹ، ٹرینٹی کا تیسرا حصہ، لیکن یہ تھرو دا اسپرٹ، روح کے ذریعے سے، یہ جملہ صرف کنگ جیمز ورژن میں ہے، دوسری ورژنز کے اندر نہیں ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن میں نہیں ہے، امریکن اسٹینڈرڈ بائبل میں نہیں ہے، اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن جہوہ وٹنس کی بائبل میں بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح عقیدے کی بات بھی
वो चेंजेस उसके अंदर आती है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, क्योंकि जेहोवाज विटनेस की बाइबल है, वो लोग ट्रिनिटी में अकीदा रखते ही नहीं। वो लोग ये नहीं मानते कि एक खुदा तीन और तीन खुदा एक, इस अकीदे के कायल नहीं है वो। इसी वजह से उन्होंने थ्रू द स्पिरिट निकालना ज़्यादा मुनासिब समझा। इसलिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चाहते हैं वो निकाल देते हैं। और वो बात याद करने की जैसी है जो जॉर्ज आर्थर बट्रिक अपने इंटरप्रेटिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल वॉल्यूम 4 के अंदर कहते हैं, जो 1996 में छपी, कि जो हमारी चेंजेस हम पाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर या बाइबल में, वो केयरलेस होने की वजह से नहीं है, लापरवाही होने की वजह से नहीं है, या मिस हैंडलिंग की वजह से नहीं है, बल्कि डिलिबरेट है, जानबूझ करके है। वो इसलिए कि जो कॉपी कर रहा है, जो नकल कर रहा है, एक कॉपी से दूसरे कॉपी में उतार रहा है, वो मजहबी आदमी है, वो दीनदार आदमी है। वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके सामने एक कॉपी में उसके अकीदे के खिलाफ कुछ बात है और उसी को वो नकल कर रहा है हूबहू वैसे ही बिगैर चेंज किए हुए। जाहिर है उसके अकीदे के खिलाफ होगा तो उसको वो चेंज कर देगा। तो यहाँ उसका मकसद ये है कि उसके अकीदे के हिसाब से जो बात सच है वही बात वो आगे जाने देगा, उसी बात को वो बढ़ाएगा, और अगर कोई गलत बात एक कॉपी में है तो उसको चेंज करके वो दुरुस्त कर देगा। तो उसका मकसद ये नहीं है कि ओरिजिनल में क्या हुआ करता था, क्या क्या है, ये उसका मकसद नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये है कि सही बात क्या है, और सही बात जो उसके हिसाब से है वही बात वो आगे जाने देगा। तो इस तरीके से डिलिबरेट चेंजेस हुए हैं, जानबूझ करके चेंजेस हुए हैं। तो हम उसकी मिसाल देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जानबूझ करके चेंजेस अभी भी जारी है। दूसरी मिसाल हम देखते हैं, 1 जॉन, ये न्यू टेस्टमेंट की किताब है, पहला यूहन्ना, 1 जॉन, पहला यूहन्ना, बाब नंबर 4 और 3 नंबर की वर्स में यहाँ पर एक बात ऐसी है कि एवरी स्पिरिट, जो रूह, और ये रूह के लिए जो वर्ड इस्तेमाल यहाँ हुआ है ये नबी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो नबी, दैट कन्फेसेथ नॉट दैट जीसस क्राइस्ट इज कम इन द फ्लैश, कि जो नबी ये नहीं कबूल करता कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए, इंसानी गोश्त पोश्त में आए, तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। मतलब शर्त वहां पर यह है कि जो नबी ये कन्फेस करे, ये कबूल करे कि ईसा अलैहिस्सलाम गोश्त पोश्त इंसानी शक्ल में आए हैं, तो वो नबी सच्चे नबी हैं। ये वर्स 1 जॉन चैप्टर 4 की इस बात की तरफ इशारा करती है और ये दलील पेश करती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर कुरान के ज़रिए से और अहादीस के ज़रिए से ये बात तस्लीम करते हैं, मानते हैं, और सारी मुसलमान कौम इस बात को तस्लीम करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान होते हुए इंसानी गोश्त पोश्त में वो नबी हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। उनको खुदाई का दर्जा नहीं देते, उनको इंसान समझते हैं, मैन समझते हैं, बशर समझते हैं। तो ये एक गवाही है जो बाइबल में मौजूद है कि जो नबी ऐसा करेगा वो नबी सच्चा नबी है। तो ये कितनी बड़ी दलील थी, ये इशारा था प्रॉफेट मोहम्मद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि वो नबी सच्चा नबी है। लेकिन जाहिर है ये बर्दाश्त नहीं होगा, और नहीं बर्दाश्त होने की वजह से इसको चेंज करके रखेंगे। और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में अब ये बात है, बट एवरी स्पिरिट दैट डज नॉट एक्नॉलेज जीसस इज नॉट फ्रॉम गॉड, कि हर वो स्पिरिट, हर नबी जो नहीं माने ईसा अलैहिस्सलाम को, वो गॉड की तरफ से नहीं है। अब ये पूरा ही मतलब चेंज हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान मानना ये जुमला निकाल ही दिया,
तो पूरा ही उसका जो मतलब है वो फौत हो गया, ख़त्म हो गया। उसी तरीके से न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल भी वही बात कहती है, एंड एवरी स्पिरिट दैट डज नॉट कन्फेस जीसस इज नॉट फ्रॉम गॉड। वो गोश्त में इंसानी शक्ल में मानना, वो बात निकाल दी। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में और चेंजेस आई, बल्कि और ज़्यादा ऐड कर दिया, डज नॉट ओरिजिनेट विद गॉड। डज नॉट ओरिजिनेट विद गॉड आखिरी मतलब ये, बट एवरी इंस्पायर्ड एक्सप्रेशन दैट डज नॉट कन्फेस जीसस डज नॉट ओरिजिनेट विद गॉड। ये बात तो एक्सप्रेशन की तरफ चली गई कि जो एक्सप्रेशन है वो अगर वो ये कन्फेस नहीं करता तो वो एक्सप्रेशन, वो जज्बात गॉड की तरफ से नहीं है। पूरा मतलब ही चेंज हो गया। देख रहे हैं किस तरीके से एक ही वर्स मुख्तलिफ बाइबल में मुख्तलिफ अंदाज से चेंजेस वजूद में आ जाते हैं। ये हाल है बाइबल का, और ये हाल है ईसाइयों का जो ये दावा करते हैं कि हमारे पास एक ही बाइबल है। एक वर्स 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 3 कि किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को गोश्त पोश्त में इंसान समझने पर अगर कोई नबी उसको इकरार करता है तो वो सच्चा नबी होने का दावा किया गया है, लेकिन उसको चेंज करके दूसरी बाइबलों में मुख्तलिफ कर दिया। दूसरी मिसाल देखते हैं, रेवलेशंस। रेवलेशंस की किताब ये आखिरी किताब है न्यू टेस्टामेंट की और आखिरी किताब है पूरे बाइबल की। और आप अगर रेवलेशंस को पढ़ेंगे तो अजीब अजीब बात आप पढ़ेंगे। आपको रेवलेशंस में ऐसे ऐसे जानवर दिखाई पड़ेंगे जिसके इतने इतने सींग हैं, ज़बान बाहर, तो ये चीज़ वो चीज़, जिस तरह आप ख्वाब देखते हैं उस तरीके से आपको टेक्स्ट में रेवलेशंस में दिखाई देगा। इसलिए बाज़ स्कॉलर्स ये कहते हैं, जो बाइबल के माहिर हैं, वो कहते हैं कि जैसे कोई आदमी खूब खा ले तो रात को जो ख्वाब देखता है उस तरीके से ये बातें इसमें हैं। लेकिन ईसाई हजरात इस रेवलेशन की किताब को भी मुतबर्रक मानते हैं, जबकि हिस्ट्री ये है कि बहुत ज़माने तक रेवलेशन को न्यू टेस्टामेंट में शामिल ही नहीं किया गया था। बहुत बाद में रेवलेशन को न्यू टेस्टामेंट में शामिल किया गया। बहरहाल आज हालत ये है कि न्यू टेस्टामेंट में रेवलेशन है, और रेवलेशन के 5 नंबर के बाब और 14 नंबर के वर्स में है एक बात ऐसे लिखी हुई है, 4 and 20 elders, 4 और 20 बुजुर्ग, fell down and worshipped, नीचे गिरे और उन्होंने इबादत की, him that liveth forever and ever, उसको जो हमेशा और हमेशा रहेगा। ये बात रेवलेशन में है और किंग जेम्स वर्जन में है। लेकिन यही बात न्यू इंटरनेशनल वर्जन में कैसे है? द एल्डर्स फेल डाउन एंड वर्शिप्ड, बुजुर्ग नीचे गिरे और इबादत की। हिम दैट लिवेथ फॉर एवर एंड एवर, उसकी इबादत की जो हमेशा हमेश जिंदा रहता है, ये गायब, ये नहीं है। 4 and 20, 4 और 20 बुजुर्ग, 4 और 20 गायब, खाली बुजुर्ग वो गिरे। तो 4 और 20 भी गायब, और जो हमेशा हमेशा रहेगा उसकी इबादत कर रहे हैं वो भी गायब। उसी तरीके से अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में भी द एल्डर्स फेल डाउन एंड वर्शिप, के बुजुर्ग गिरे और उन्होंने इबादत की। उसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी। तो फिर से एक मरतबा ये चेंज आप देख रहे हैं। फिर दोबारा रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स नंबर 9, 20 नंबर के बाब और 9 नंबर के वर्स के अंदर है, फायर कम डाउन फ्रॉम गॉड आउट ऑफ हेवन, कि आग निकली गॉड की तरफ से, ऊपर आसमान से, गॉड की तरफ से। ये मायूब और अच्छा नहीं लग रहा था कि आग गॉड की तरफ निकले। हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि बाइबल में ऐसा भी जिक्र है कि गॉड के मुंह से, खुदा के मुंह से आग निकली और नाकों से धुआं निकला। इस तरीके की बातें बाइबल में आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कभी और देखेंगे। लेकिन यहाँ पर खुदा के तरफ से आग निकली, ये बात नहीं अच्छी लगी, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन और बाकी ट्रांसलेशन जो हम देख रहे हैं उसमें नहीं है। फिर दोबारा रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स नंबर 24, 21 नंबर का बाब और 24 नंबर की वर्स में है, एंड द नेशंस ऑफ देम विच आर सेव्ड शैल वॉक इन द लाइट ऑफ इट, और जो मुल्क जो बचा लिए गए हैं
वो लोग रोशनी में चलेंगे। Them which are saved, वो जो बचा लिए गए हैं, ये गायब। ये सब ट्रांसलेशन में गायब, बाकी के सिर्फ ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है। रेवलेशंस चैप्टर 8 वर्स नंबर 13 के अंदर है, 8 नंबर के बाब और 13 नंबर की वर्स में है, आई बिहोल्ड एन ईगल। ये रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में है, ये गुड न्यूज बाइबल में है। लेकिन ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन में है, आई बिहेल्ड एन एंजल। एक वर्जन में एंजल है और दूसरी वर्जन में ईगल है। अब एंजल सही कि ईगल सही? रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 11, 1 नंबर के बाब और 11 नंबर के वर्स में है, आई एम अल्फा एंड ओमेगा, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। ये बात आरएसवी में नहीं है, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में नहीं है, गुड न्यूज बाइबल में नहीं है, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में से तो हटा ही दिया गया है। उसमें तो बिल्कुल वो वर्स ही नहीं है, गायब ही है। अब हम दो बाइबल का हवाला लेते हैं, किंग जेम्स वर्जन, ऑथराइज्ड वर्जन और एनआईवी, दो प्रोटेस्टेंट मशहूर मकबूल बाइबल। मत्ता की गॉस्पेल के अंदर मैथ्यू में 5 नंबर के बाब और 44 नंबर के वर्स में है, लव योर एनिमीज, तुम अपने दुश्मनों को प्यार करो, दुश्मनों को मोहब्बत करो। ब्लेस देम दैट कर्स यू, और उनको ब्लेस करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको अच्छी दुआएं दो जो तुमको लानत मलामत करे। डू गुड टू देम दैट हेट यू, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो जो तुमसे नफरत करें। एंड प्रे फॉर देम विच डिस्पाइटफुली यूज यू, और उनके लिए दुआ करो जो तुम्हारा इस्तेमाल करें। एंड परसिक्यूट यू, और तुमको सताएं। ये जुमला कि उनके लिए दुआ करो जो तुमको लानत मलामत करें, उनके साथ में अच्छाई करो जो तुमसे नफरत करें, ये जुमला न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं है, ये एनआईवी में नहीं है। एनआईवी में क्या है? लव योर एनिमीज एंड प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू, तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और उसके लिए दुआ करो जो तुमको सताए, जो कर्स करे, जो लानत मलामत करे और जो तुमको इस्तेमाल करे, ये एनआईवी में नहीं है। यूहन्ना 16 नंबर के बाब और 6 नंबर के वर्स में है, अ लिटिल वाइल एंड यू शैल नॉट सी मी, थोड़े ही वक्त में तुम मुझे नहीं देखोगे। एंड अगेन अ लिटिल वाइल, और फिर दोबारा थोड़ी देर में, यू शैल सी मी, तुम मुझे वापस से देखोगे। बिकॉज आई गो टू द फादर, क्योंकि मैं बाप की तरफ जा रहा हूं। क्योंकि मैं बाप की तरफ जा रहा हूं, ये न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं है, वहां से निकाल दिया। इन अ लिटिल वाइल यू विल सी मी नो मोर, एंड देन आफ्टर अ लिटिल वाइल यू विल सी मी, थोड़े से वक्त में तुम देखोगे और थोड़े से वक्त में तुम नहीं देखोगे, क्योंकि मैं बाप की तरफ जा रहा हूं। ये सिर्फ ऑथराइज्ड वर्जन में है, किंग जेम्स वर्जन में, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में नहीं है। लूक चैप्टर 10 वर्स नंबर 1, 10 नंबर के बाब और 1 नंबर के वर्स में है, एंड दीज थिंग्स द लॉर्ड अपॉइंटेड, और ये चीजें हैं जो परवरदिगार ने अपॉइंट किए, मुकर्रर किए। अदर 70 ऑल्सो, और दूसरे 70 को भी, एंड सेंड देम 2 and 2 बिफोर हिज फेस इनटू एवरी सिटी, और उसके बाद 2-2 करके हर शहर में भेजा। अब यहां पर 70 का जिक्र है, 70 न्यू इंटरनेशनल वर्जन में है, एनआईवी के अंदर, दूसरी प्रोटेस्टेंट बाइबल। एंड आफ्टर दिस द लॉर्ड अपॉइंटेड 72 अदर्स, और उनको 2-2 करके भेजा। एक जगह पर है 70 और दूसरी जगह पर है 72। देखिए, ये 70 और 72 में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 ही का फर्क है। लेकिन ये फर्क हम इंसानी किताब में नहीं देख रहे हैं, ये फर्क हम खुदा की किताब में देख रहे हैं। अगर खुदा की किताब में एक नुक्ते का भी फर्क हो, एक पॉइंट का भी फर्क हो, एक नंबर का भी फर्क हो, तो ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अल्लाह कभी गलती नहीं करता, खुदा कभी गलती नहीं करता। तो इस तरीके से अगर आपकी किताब में इस तरीके का फर्क है, हेर फेर है, तो इस हेर फेर को आप खुदा की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। ये खुदा की जानिब से है, ये इंसान की जानिब से है, ये इंसानी खसलत है, ये इंसानी खुसूसियत है। तो इस तरीके से अगर ये निशानी हमको मिलती हैं इन किताबों में,
تو یہ ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، لوک باب نمبر 9 اور ورس نمبر 56، For the Son of Man is not come to destroy men's lives but to save them، کہ انسان کا بیٹا وہ نہیں آیا ہے برباد کرنے کے لیے لوگوں کو بلکہ بچانے کے لیے۔ And they went to another village، اور پھر اس کے بعد میں وہ دوسرے گاؤں میں گئے۔ یہ پورا جملہ کہ آدمی کا بیٹا وہ تم کو برباد کرنے نہیں آیا ہے بلکہ بچانے آیا ہے، یہ پورا ہٹا دیا گیا، یہ ہے ہی نہیں نیو انٹرنیشنل ورژن میں، بلکہ ہے کہ and they went to another village، بلکہ اتنا ہی ہے کہ وہ دوسرے گاؤں میں گئے۔ 1 Corinthians chapter 5 verse number 7، 1 Corinthians باب نمبر 5 اور 7 میں ہے Christ our Passover is sacrificed for us نکال کر کے لیم کر دیا گیا۔ مارک چیپٹر 3 verse 15 کے اندر ہے power to heal sickness and to cast out devils، power to heal sickness غائب کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اسی طریقے سے مارک چیپٹر 11 verse number 26 میں پورا کا پورا ورس NIV کے اندر غائب ہے۔ 1 Corinthians chapter 10 verse number 28 میں for the earth is the Lord's and the fullness of thereof، یہ پورا کا پورا ورس NIV میں غائب ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ مذہبی کتابوں میں دیکھیں گے تو کیسے آپ کا دل مطمئن ہوگا اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ اور اگر اس طریقے سے یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، اس کے اوپر اپنی نجات شرط پر لگا دینا، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ عزیزو ناظرین، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔